Today, telecom equipment manufactured in India is exported to many countries, including US, European countries, Japan. These are highly developed countries, and we feel proud that our products are today accepted as high quality. इस कंपनी में पहली बार जब आए थे तब हमने पहली बार ये देखा कि जिन बाकी कंपनियों में लड़कियों को मशीन चलाने की कोई परमिशन नहीं थी, उस कंपनी ने हमें मशीन चलाने की परमिशन दी और आज हम इतने कैपेबल हैं 3 साल में कि हम इस मशीन को अकेले ऑपरेट कर सकते हैं। कानपुर शहर में कहाँ रहते हैं आप? आपका परिवार कहाँ रहता है? पनकी सर। पनकी में, IIT के पास में? जी सर। मेरा सौभाग्य था, मैं IIT गया था, IIT कानपुर। ठग्गू के लड्डू खाए आपने? यस सर, ठग्गू के लड्डू खाए। बहुत अच्छे। तो पनकी में जब अपने परिवार के दूसरे लोगों को और साथियों को बताते हो आप कि ऐसी बड़ी मशीन हैंडल करते हो, तो कैसे बोलते हैं, क्या रिएक्शन रहता हूँ? और वो विश्वास नहीं करते कि मैं इतनी बड़ी मशीन हैंडल करती हूँ, लेकिन मैं जब उन्हें बताती हूँ, दिखाती हूँ कई चीजों को, तो वो गर्व महसूस करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप सब मुझे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बनी। The telecom manufacturing industry in India is quite matured now, and within a very short time frame, we have started exporting to US, to UK, to Netherlands, to France, to Spain, Austria, UAE, Japan, and many more countries. आप देखेंगे आने वाले समय में एक फैक्ट्री में 20-20 हजार नौजवान एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की फैक्ट्रियां देश में डेवलप हो रही है। Today, telecom equipment manufactured in India is exported to many countries, including US, European countries, Japan. These are highly developed countries, and we feel proud that our products are today accepted as high quality. Many of the times, many of the lines, for example, this line today inaugurated, will be maintaining Six Sigma quality standards. It will be having a class 8 clean room. So these are the things which distinguish us, which will place us in a very totally different level, and we should all strive, the partners, the ecosystem, and the government officers, we should all try and make sure that we maintain these quality standards, and we continuously strive to maintain the quality of the products and the consistency in our production systems. We will be making sure that India emerges as a major telecom design, innovation, and manufacturing base. You would also be very happy that ITU has accepted our inputs in the standardization of 6G standards. It's a great thing, and this process will be further strengthened in the coming years, and we hope and we are working towards positioning India as a leading standards and IP contributor to the 6G journey. So this is the journey, and this all was possible only because our Prime Minister had a very clear vision of making India as a leader in telecom technology, leader in telecom manufacturing. And there are many critics. I would also like to reply to them. Those who say that value addition is not there in India should come and see this plant and see how much depth we are now acquiring in the telecom and electronics manufacturing. Very happy to know that VVDN already has 10,000 plus employees, and very happy to know even further that 70% of them are our sisters who are working on this. I would like to hear from the sisters, what do you think about this entire thing? बहनों, आप क्या सोचते हो और आपके क्या सजेशन है, आपसे सुनना चाहूंगा। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आकांक्षा द्विवेदी है। मैं यहाँ इस कंपनी में असेंबली में पिक एंड प्लेस ऑपरेट करती हूँ। मैं इस कंपनी में पहली बार जब आए थे तब हमने पहली बार ये देखा कि जिन बाकी कंपनियों में लड़कियों को मशीन चलाने की कोई परमिशन नहीं थी, उस कंपनी ने हमें मशीन चलाने की परमिशन दी और आज हम इतने कैपेबल हैं 3 साल में कि हम इस मशीन को अकेले ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम उस आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान समर्पित कर रहे हैं और हमारे VVDN की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। हम इस कंपनी में काम कर कर आज उस रास्ते पर या उस हद तक हम सक्षम हुए हैं कि हम अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम VVDN के साथ काम कर रहे हैं और हमें आज इस मौके पर
मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है कि मैं विविडियन के शब्द में कुछ कह सकती। आपके परिवार में, आपके घर में जब आप एक्सपीरियंस बताते हो किस तरह से आप इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को हैंडल करते हो, कैसा लोगों का रिएक्शन रहता है? सर, जब मैं पहली बार कंपनी में आई थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि इस मशीन को कैसे संभालना है, मशीन हमें संभालनी है, ये बहुत काफी महंगी मशीनें हैं, कहीं इसमें कुछ हानिकारक चीजें ना कर दे, हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो। पर धीरे धीरे हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया, हमें एक्सपीरियंस दिया और आज मैं इतनी कैपेबल हूँ कि इस पूरी लाइन को अकेले हैंडल कर सकती हूँ और पूरे अपनी टीम के साथ, सपोर्ट के साथ इस लाइन को हैंडल करती भी। लेकिन ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही प्यारा अनुभव है। मैं किसी को बताती हूँ कि मैं इतनी महंगी और इतनी अच्छी मशीनों को हैंडल कर रही हूँ तो वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। हमें भी आप पर गर्व है और आपने जो सीखा है जितना हो सके दूसरी बहनों को भी सिखाना है। जी सर, जी जरूर। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। और कौन? गुड आफ्टरनून सर। सर, मेरा नाम अंकिता यादव है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ काम करते 3 साल हो गए। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है। हर दिन हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे कलीग्स, हमारे सर हमें सपोर्ट करते हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसे हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हम इस मशीन को अकेले हैंडल करते हैं सर। पहले जब हम आए थे तो इसे बिल्कुल हैंडल करना कैसे करना है तो हमारे सर, हमारी सीनियर्स हमारी हेल्प करते हैं, उसे सिखाया, हमें बताया कि कैसे ऑपरेट करना है। आज हम इस पूरी लाइन को अकेले लीड कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनें आपने सीखी, सीखने में कितना समय लगा? सर, हमें हमारे सीनियर्स ने सपोर्ट किया, ज्यादा समय नहीं लगा बट लगा सर। आपको जब ये गर्व के साथ अपने कानपुर शहर में कहाँ रहते हैं आप? आपका परिवार कहाँ रहता है? पंकी सर। पंकी में, आईआईटी के पास में? जी सर। मेरा सौभाग्य था, मैं आईआईटी गया था, आईआईटी कानपुर। ठग्गू के लड्डू खाए आपने? यस सर, ठग्गू के लड्डू खाए। बहुत अच्छे। तो पंकी में जब अपने परिवार के दूसरे लोगों को और साथियों को बताते हो आप कि ऐसी बड़ी मशीन हैंडल करते हो तो कैसे बोलते हैं, क्या रिएक्शन रहता है उनका? और वो विश्वास नहीं करते कि मैं इतनी बड़ी मशीन हैंडल करती हूँ, लेकिन मैं जब उन्हें बताती हूँ, दिखाती हूँ कई चीजों को तो वो गर्व महसूस करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप सब मुझे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ। बहुत अच्छा। आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने स्पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर फील्ड में बेटियों को, बहनों को एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। यस सर। अच्छा लगता है इससे? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। प्रश्न, आज से 10 साल पहले भारत में जितने मोबाइल फोन यूज होते थे उसमें से कितने भारत में बनते थे? मान लो 100 मोबाइल फोन यूज होते थे तो 100 में से कितने प्रतिशत भारत में बनते थे? 1%। बिल्कुल मिनिस्क्यूल, 1%, 2%, राइट? आज कितने बनते हैं? 98%। आज भारत में जितने मोबाइल फोन यूज होते हैं उसका 98% भारत में बनते हैं। अच्छा लगता है किस तरह से मोदी जी ने जिंदगी अपने पूरे की पूरी जिंदगी बदल दी, एक तरीके से सोचने का तरीका बदल दिया। ये इस प्रोग्राम का आपको नाम पता है? मेक इन इंडिया इस प्रोग्राम का नाम। यस सर। तो आप सब मेक इन इंडिया के महारथी हो। यस सर। Hi. Sir, one question is, which are the countries or geographical locations where the manufactured products of VVDN will be exported? I'll tell about the entire industry. The telecom manufacturing industry in India is quite mature now, and within a very short time frame, we have started exporting to US, to UK, to Netherlands, to France, to Spain, Austria, UAE, Japan, and many more countries. Sir, one more question, sir. Sir, can we see more such foreign companies like Telit to partner with Indian players in anytime soon, in coming months or something like that, in the telecom sector specifically? Yes, there will be many more companies who want to manufacture in India, and they are very happy with the design capabilities of our companies.
I am very happy with the government policy. They are clearly placing India as a trusted value chain partner. Please mark my words. I am not saying supply chain partner. I am saying value chain partner. So by value chain partner, we mean that many of these countries want to get the design also done in India. So design, manufacturing combined makes us a very, very important trusted value chain partner. Another question. India is currently one of the leading nations in 5G, but many other nations are still very much behind. So will India be aiding other nations as well? Yes, we are manufacturing telecom equipment for 5G and we will be exporting, and our companies are supporting the entire telecom operations of many countries in the world. So we have today emerged as a leader, and this is very clearly thanks to our Prime Minister's vision. If you recall, last year IMC, 2022 IMC, and I invite all of you to join the IMC in coming few days. In last year IMC, Prime Minister gave us the target that we should emerge as a leader in 5G and 6G. The days of 2G and 3G, which were what they were, very full of corruption, full of taking the country back, those days are over. And today the country is looking forward under Prime Minister's leadership and looking at not only designing the equipment but also manufacturing them and also helping the world in developing their ecosystems. Myself Ansari from Z News. तो ये जानना चाहता हूँ सर, आत्मनिर्भर भारत के तहत जैसा कि हमने देखा है लड़कियां यहाँ पे लगी है, तो सरकार क्या काम कर रही है कि हर कंपनी में छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करके इन कंपनीज में लगाया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे नौजवानों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग आज मिल रही है कि उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपने देखा बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे नौजवान काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सीख रहे हैं और अपने साथ ही साथ दूसरे और नौजवानों को भी वो लोग जोड़ रहे हैं और ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे आने वाले समय में एक एक फैक्ट्री में 20-20 हजार नौजवान एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की फैक्ट्रियां देश में डेवलप हो रही है। This is really a matter of pride for all of us that such an advanced manufacturing process is now starting in our country. And this all goes back to about 9 years back when the leadership in the country changed and we got a leader who could think ahead, who could clearly lay out a vision, who could put enough energy and focus so that the vision gets implemented. आप देखो एक लंबे टाइम तक देश में टेलीकॉम इक्विपमेंट केवल और केवल इंपोर्ट होता था। देश में मैन्युफैक्चर होगा और एक्सपोर्ट होगा टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लैरिटी के साथ, एक विजन के साथ, एक फोकस के साथ काम किया, उससे आज अपने सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल से हम देश में गर्व कर सकते हैं अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर। 5G का लॉन्च हुआ लास्ट October 1st October 2022. Within one short year, our country, Bharat, has become among the top 3 ecosystems for 5G. It's a matter of great pride. The way 5G was rolled out, the speed at which things were done, it's really a matter of great pride. Close to 2,419 crore investment has actually happened in telecom manufacturing in India. Exports are 7,600 crore. And the most important thing is that by now employment in these units supported by government's policy, supported by Prime Minister Modi ji's policy of PLI, the employment in these units is today 17,753. And this employment number is increasing day by day. Within the next few years, in telecom manufacturing alone, we will see close to 4,000 crore total investment, which is double of what has already happened, 44,000 employment,
and 2,37,000 total sales revenue.